निकालेगा नाक के बोलेगा दे दे। Good evening, everyone. We will wait for 5 minutes. Let all to join, then we will start. कोई आया क्या? Hello, good evening. Good evening, student. Can you all see my screen? Yes. Okay. Yes, sir. Mhm. Okay, just we are waiting for 2 minutes. Let all to join. We are starting. I can see some FIVCom students and Akansha, Alin. Okay, Doha, Mullah.
Okay, it's good. See, basically, this meeting has been arranged to impart you some knowledge, some information regarding NSS, because today is the NSS Foundation Day. Okay, NSS जो है, it was started on 24 September 1969. In the beginning, there are 40,000 students. Now there are 4 million students who are associated with NSS. Before lockdown in the 2018-19, there were 4 lakh students. 40 lakh students who are this associated with NSS. Okay. Now about NSS, so far our college is concerned, we have NSS since 1997, and we have a unit of 100 students. 100 students can join NSS. We have enrolled the students of TY BCom and SY BCom up to 60. 40 students we have to take from first year BCom. Okay, we have reserved the 40 students for FY BCom students. So NSS जो है, it stands for National Service Scheme, that is राष्ट्रीय सेवा योजना. ये जो स्कीम है, बेसिकली it was started with the thought of महात्मा गांधी. महात्मा गांधी की ऐसी सोच थी कि अगर स्टूडेंट लाइफ में जो स्टूडेंट है वो एनएसएस से जुड़ता है, ओके, मतलब किसी न किसी प्रकार की वो राष्ट्रीय सेवा करता है, इफ ही सर्व्स द नेशन अलोंग विद हिज स्टडीज, तो उसकी पर्सनालिटी जो है बहुत डेवलप होती है. ठीक है, he knows how to deal people, he मतलब can acquire the leadership qualities, administrative qualities उसके अंदर आती है अगर वो पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा करता है. तो दिस आइडिया वाज गिवन द शेप, एक ऑर्गेनाइजेशनल शेप उसको दिया गया, एंड दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. ओके, ये जो है, इवन इट इज आल्सो प्रिवेल्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, लेकिन हमको इसका नॉलेज नहीं है. यहाँ पे जो हमारे मुंबई में जूनियर कॉलेज में एनएसएस बहुत कम है, लेकिन डिग्री कॉलेज ऑलमोस्ट ऑल द डिग्री कॉलेज हैव एनएसएस यूनिट, वहां पे उनको एनएसएस यूनिट है. तो नेशनल सर्विस स्कीम का उद्देश्य यही है, उसका जो मोटो है, इट इज नॉट मी बट यू. So many of the social activities are conducted in association with public bodies, government agencies, in association with non-government organizations. बहुत सारी social activities हम करते हैं, जिसमें NSS volunteer, we say volunteer because he gives his service voluntarily. उसको कोई जबरदस्ती नहीं है. Voluntarily he participates in these social activities. Okay. तो मोटो ऑफ एनएसएस इज नॉट मी बट यू. उसके बेनिफिट्स यही हैं. अगर 3 बेनिफिट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि ही कैन बिकम अ लीडर, ही कैन acquire the leadership qualities, he can become an efficient administrator, and he gets good understand, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, कि he becomes a person who is understand human nature when he does the social service in his student life. He also understands the culture. He also gains the confidence when he conducts various activities. Okay. We also fix the 2 leaders, girl leader and boy leader. That process is also remaining. तो आप जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनमें से किसी को एनएसएस लीडर बनना है तो यू कैन अप्रोच मी, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे सिद्धेश, वेयर आर यू प्रेजेंट? यस सर. हाँ, we have सिद्धेश सर्जने. he is a past NSS leader. मैंने उसको खास फोन करके बोला, though he has graduated now, कि इस मीटिंग को अटेंड करो, कि वो आपको बताएगा कि उसने क्योंकि वो एज ए लीडर काम किया है,
he has also attended a leadership camp. तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, he will also speak, वो भी वो बोलेगा, ठीक है. Siddesh, you speak for 5 minutes, then I will continue. Okay, sir. Sir, I am audible, sir. Yes. Yes. Jai Hind everyone. I am Siddesh Sarjane. जैसे कि सबको आज ये एनएसएस डे, तो मैं जैसे अभी तुम लोग एफवाई में न्यू स्टूडेंट हो, तुम लोगों को मालूम नहीं एनएसएस क्या है, एनएसएस क्या रहता है. सर मेरे भी सिचुएशन ऐसी ही थी, एनएसएस क्या ऐसे इतना मालूम था. सर ने अभी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी कि एनएसएस में ना सोशल सर्विसेज करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे करना पड़ता है. ये सब तो ये बातें मतलब स्टार्टिंग में तो मालूम नहीं थी मुझे भी. मैं भी ऐसे तुम अभी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, कैसे करेंगे, वैसे मैं भी मालूम नहीं था. इसके बाद फिर एनएसएस ज्वाइन किया 2018-19 फर्स्ट ईयर था मेरा, तभी मैं फर्स्ट ईयर में था. तो थोड़ा थोड़ा सीख के फिर 16 अगस्त 2019 को मुझे एलटीपी के लिए सिलेक्ट किया गया था. तो एनएसएस पीओ हमारे सविता मैम थे, तो मैम ने बोला कि एलटीपी के लिए तुझे जाना पड़ेगा करके. तो बोला ठीक है मैम. तो एलटीपी मतलब लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप रहता है. उसमें लीडर को जो एलटीपी में जाता है, मतलब कॉलेज से जो सिलेक्ट हो जाता है, उसको एलटीपी के लिए भेजा दिया जाता है. उसमें मुझे मालूम नहीं था. अभी उधर सब मुंबई यूनिवर्सिटी के सब कॉलेज में से आए थे. मुझे मालूम नहीं था क्या रहता है, कैसा रहेगा, आगे का सफर कैसा होगा. 7 दिन का कैंप रहता है. फर्स्ट डे कुछ नहीं इतना मालूम हुआ, लेकिन सेकेंड डे से जब भी स्टार्ट हुआ तभी टाइम की वैल्यू नहीं मालूम थी, क्या कर रहता है. डिसिप्लिन मेन इम्पोर्टेंट थी. वैसे वैसे फर्स्ट डे सब ऑर्गेनाइजेशन सब उधर हो गया मेरा. उसके बाद सेकेंड डे वैसे चालू हुआ तो मतलब 5:30 बजे हम लोग को वेकअप टाइमिंग था. तो मालूम नहीं था, तो सब लोग हमारा घर में जैसे लेट उठते 7-8 बजे वैसे. तो फर्स्ट डे हमारे सर ने मतलब कैंप के टाइम ये सर ने पनिशमेंट दे दी थी कि ना एनएसएस लीडर को ये क्या आपने वो पूरा ये संभालना पड़ेगा अपना वॉलंटियर के साथ. तो लीडर को पहले तैयार होना पड़ेगा, तो तभी पनिशमेंट मिली थी. तो अभी नहाने के लिए सब लोग को ज्यादा से ज्यादा 10 तो 15 मिनट लगता है, लेकिन उधर 10 सेकंड में नहाना पड़ता था ज्यादा करके बॉयज लोगों के लिए. तो तब भी मालूम पड़ा कि टाइम की वैल्यू क्या है. और एनएसएस इतना बोलते हैं कि ज्वाइन करने से पहले कि ग्राउंड लेवल पे काम करना है. ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट आज मुझे मालूम हो रहा है कि एनएसएस कितना इम्पोर्टेंट है. एनएसएस में से वैसे ग्राउंड लेवल पे पहले मतलब अभी भी स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन का वैसे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है. वैसे अभी पुलिस मित्र मतलब गणपति विसर्जन, नवरात्रि विसर्जन के टाइम वो पुलिस मित्र के साथ हेल्प करना पड़ता है. वैसे मालूम होते होते गया. तो एनएसएस में एलटीपी के बाद में एलटीपी होता है, एडवेंचर कैंप, और बहुत सारे कैंप ऐसे ऐसे होते हैं कि जो कभी देखे भी नहीं होंगे और एनएसएस में पूरे होते हैं. वैसे एडवेंचर कैंप हमारा अपने भारत कॉलेज में से सिलेक्ट होके बच्चा गया था शिमला में, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पहला पैसा आपने को खुद को पे करना पड़ता है. और 7 दिन ट्रैकिंग सब जितना एडवेंचर में होता है पूरा का पूरा एनएसएस में कॉलेज की तरफ से जाने को मिलता है. वैसे एडवेंचर एसआरडी एनआरडी मतलब आप भी कुछ एक 15 दिन पहले मैम ने ग्रुप में भेजा होगा एसआरडी एनआरडी के लिए. उसमें क्या होता है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के वो परेड होती है ना, परेड में मतलब वो जो 26 जनवरी को न्यूज में बताते हैं कि सब लोग एक साथ कर दो, वो दिल्ली में होता है. तो उधर जाने का चांस मुझे एनएसएस से मिलता है. उसमें सिलेक्ट होते उसका ट्रेनिंग पूरा एनएसएस पूरा प्रोवाइड कर देती है. और ऐसे एडवेंचर नेशनल कैंप, स्टेट लेवल कैंप,
वैसे मुझे एनएसएस में सेकंड ईयर था, तभी मेरा स्टेट लेवल में सिलेक्शन, स्टेट लेवल कैंप के लिए। और उसमें मतलब बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता है, जो आप घर में बोलते हैं, कोई-कोई लड़कियाँ बॉयज़ बोलते हैं कि ना घर में मैं ये कभी गैस के पास नहीं गया, मुझे कुछ नहीं आता बनाने के लिए। लेकिन इस काम में एनएसएस में पूरा का पूरा मतलब खुद के साथ-साथ दूसरों को भी डेवलप करने के लिए एनएसएस से बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। ऐसे ही एनएसएस में होता है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सिद्धेश। तो बेसिकली सिद्धेश ने जो बताया कि एडवेंचर कैंप होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनआरडी, नेशनल डे जो रिपब्लिक डे होता है, ओके, परेड होता है, उसमें आदमी जो है एनएसएस वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकता है, कंटेस्ट कर सकता है। ओके, देन कमिंग टू जो हमारा ये कैंप होता है, वी आल्सो कॉलेज लेवल वी आल्सो कंडक्टेड कैंप। वो 7 days रेसिडेंशियल कैंप होता है, जिसमें we go to a village, we live in some at some place in school or something, we arrange that। और 7 days हम एक गांव में डेली एक काम करते हैं, वहाँ पे ही सेमिनार्स होते हैं, कुछ लेक्चर्स होते हैं, एंड वी आल्सो डू सम सोशल सर्विस इन अ विलेज। वहाँ पे मेडिकल कैंप अरेंज करते हैं, या आई कैंप अरेंज करते हैं, स्वच्छता अभियान के अंडर कुछ काम करते हैं। तो दैट एनएसएस कैंप इज आल्सो द मेन फीचर, वो एक मेन फीचर है। ने अपना एक्सपीरियंस बताया, एवरी कॉलेज हैज अ वीडियो, और मैं एक वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे चल के बताना चाहूंगा रिगार्डिंग एनएसएस। इफ यू विल गो टू एनएसएस, जब आप देखेंगे एनएसएस टाइप करेंगे नेशनल सर्विस स्कीम, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एनएसएस। आजकल हम हर एक क्या है, यूट्यूब से हर एक चीज समझते हैं। तो जस्ट टेल मी वेदर दिस इज ऑडिबल, मतलब वीडियो का आवाज आपको आ रहा है कि नहीं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, Never you involve yourself in any more, the person what will I get should vanish. And yes, NSS does the exactly same. When I say NSS, it brings a smile on my face. It reminds us of our individual. Sir, it is not audible. Never you involve yourself in any more, the person what will I get should vanish. And yes, NSS does the exactly same. It could develop our personalities as well as fulfill the real cause of NSS. Beyond ourselves, we try to go out there in the world and need a helping hand and to do needful for the society that feeds us. The National Service Scheme of India, launched in 1969, the birth centenary of Mahatma Gandhi, is a wide-ranging organization devoted to the purpose of serving towards the society in variety of fields. The motto of NSS is not me, but the main objective of the organization is the well-being of society through various fields and sectors. We also aim at developing the personality of young minds through community service, will later serve as citizens aiming for a better tomorrow. The NSS unit of Ferguson College was started in 1975 with 50 volunteers. Today,
Around 1,500 volunteers are part of the organization. The National Service Scheme Unit of Ferguson College functions distinctively with 7 different groups operating in various sectors aiming at public welfare and personality development of volunteers. Paryavar, to protect our natural resources and address the environmental issues. Adhikar, to empower the weak and to challenge the unjust social norms, promoting prejudice and help the community during crisis. Aarogya, to build a clean and substantially strong society, and to provide medical facilities to the deprived section. Yuva Mitra, to encourage young girls to construct a better society and serve the community during the catastrophe. Valsa, to learn about and preserve the monumental wonders and spread the admirable values of the ethnic culture of India among the students. Shikshan Vivek, to educate the underprivileged and widen the scope of knowledge and learning. Jnana Prasad, to explore and expand science, eradicate superstition and stimulate fun learning. There are also various camps and drills like the friendship camp. There is a Pune introductory camp which focuses on the bonding and personality development of the volunteers with various state building and learning activities. Winter camp, a 7-day camp where volunteers stay engaged, provide unique opportunities to the volunteers for group living, collective experience sharing, and constant interaction with the community. Various activities conducted for the development of the village and for volunteers. A university level camp is organized every year. Along with these camps, our unit exclusively conducts National Integrity Tour, which work tirelessly for the eradication of the misconceptions, prejudices, and stereotypes people have about the northeastern states of India. Important is the thought, not the state. NSS is the platform which allows us to break our limitations and explore as an individual. We are extremely proud to be a part of this legacy, and we definitely strive to continue it forever and ever. Not only for us, but also for you. That's what our motto is. Not me, not me, not me, not me, not me, not me. Okay. So actually our college video is in process. I couldn't show you. Almost all activities what they are telling, we also conduct these activities. Okay. We have also 7 days NSS camp. We also conduct medical camp, eye camp. We also send students to adventure camp. लेकिन COVID की वजह से अभी वो ये सब बंद है. Okay. So at this time I want to announce that on 30th of this September, मेरे ख्याल से 24 तारीख है, तो 30 तारीख को शायद थर्सडे आएगा नेक्स्ट. We are conducting a half-day camp at विष्णु बाग. बदलापुर में एक विष्णु का रिसोर्ट है, you may be knowing that. तो वहाँ पे एक हाफ डे हम कैंप ले रहे हैं, एक एनजीओ के मतलब एसोसिएशन. तो आप में से जो भी हाफ डे उस कैंप एनएसएस कैंप अटेंड करना चाहते हैं, tomorrow you float that message. हम एक मैसेज डालेंगे, you will have to fill that form, but for that you will have to take permission of your parents. हम एक आपको अंडरटेकिंग देंगे, पेरेंट्स के परमिशन के साथ लिमिटेड स्टूडेंट्स को we are taking to half day camp because we want to break this lockdown situation now. अब क्योंकि बहुत हो गया है, टीचर्स भी बोर हो गए, बच्चे भी बोर हो गए, तो कुछ बच्चों को not more than 30 students with due social distancing, all these measures, हम विष्णु बाग में लेके जा रहे हैं. वहाँ पे हाफ डे एनएसएस कैंप होगा. आप में से भी जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म भर के मतलब जो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो रिगार्डिंग जो है ये जो एनएसएस है, इट इज बेसिकली कम्स अंडर द यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. ओके. तो एनएसएस जब ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी बेसिक उसका यही है कि व्हेन यू पार्टिसिपेट इन द एनएसएस एक्टिविटी, व्हेन यू डू सोशल सर्विस in an organized manner under the guidance of teachers, under the guidance of university. हमको यूनिवर्सिटी से गाइडेंस मिलती है and accordingly we conduct those activities in the college. तो उसका इतना ही है कि you gain confidence, you come closer to the society, you understand the society, leadership qualities. बहुत सारी personality development के traits आपके अंदर आते हैं. आप जो personality है वो develop कर सकते हैं अपने अंदर. ठीक है.
Now I want to open platform up to you if you want to ask some questions. आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछो, अदरवाइज मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ एनएसएस के बारे में. Okay, tree plantation activity है. These are the regular activities. Tree plantation activities है, स्वच्छता अभियान है, environmental protection है. These are the regular activities we conduct. Apart from the special 7 days camp होती है residential where you have to come for 7 days, day and night camp, where we work for a village for 7 days continuous. So in that camp, students learn a lot when we stay away from the home. तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है. That generally we conduct in the month of December, January. इस बार देखते हैं अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो we can conduct that in the month of February. Any questions, please? NSS के बारे में कोई पूछना चाहता है कुछ? बेनिफिट मैं नहीं बताता हूँ, एक्चुअली वो बताना जरूरी है कि you get 10 grace marks. Okay. जो वो ये रूल्स है, जैसे आपको 10 ग्रेस मार्क्स मिलते हैं. दूसरी बात ये एनएसएस जो है इट इज ए 2 years कोर्स. सपोज एफवाई बीकॉम में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एफवाई बीकॉम में करना चाहिए, आइदर फर्स्ट इन सेकंड ईयर और सेकंड इन थर्ड ईयर. व्हेन यू ज्वाइन फॉर 2 years देन यू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. तो ये 2 साल का एक एक्टिविटी है. फॉर 2 years यू हैव टू ज्वाइन and both the years you are getting the 10 grace marks. आपको 10 grace marks आपके marks में add होता है. Any question you would like to ask? So which form we have to fill for joining NSS? First year के लिए tomorrow we are floating the form. एक Google form आएगा आपको. कल आपको एक Google form ग्रुप में आएगा, वो भर के आप भेजेंगे तो हम आपको enroll कर देंगे. कल ग्रुप में आपको 2 फॉर्म्स आएंगे, ये भी आएगा और एक विष्णु बाग की कैंप का भी आएगा. यू फिल दैट फॉर्म आल्सो. हाफ डे एनएसएस कैंप है, उसमें भी यू विल लर्न अ लॉट. उसमें उसका जो एम है, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी, हाउ टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन. ओके, अपार्ट फ्रॉम सम एक्सरसाइजेस वी दे विल टीच यू. और वहां पे जो एनवायरनमेंट है विष्णु बाग में, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, वो बहुत सारे वहां के पेड़, प्लांट्स और ट्रीज है, वो आपको हम दिखाएंगे कि क्या है. देन एट द एंड अगर हमको लगा कि यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन तो वहां पे स्विमिंग पूल भी है, वी कैन लीव आल्सो दैट. लेकिन वी आर थिंकिंग फॉर नेक्स्ट टाइम, उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं. वो एक रिसोर्ट है, तो वी आर डूइंग दैट इन एसोसिएशन विद सम एनजीओ. मोस्टली इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, वो भी आप फॉर्म को भरना है. और कल जो एनरोलमेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, जो भी एनएसएस ज्वाइन करना चाहता है, दैट स्टूडेंट हैज टू फिल अ एनरोलमेंट फॉर्म. दैट आई विल सेंड इन द ऑल एफआई ग्रुप्स टुमारो. कल मैं उसको भेज दूंगा. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव एनएसएस सॉन्ग. एक एनएसएस सॉन्ग है, उठे समाज के लिए उठे. तो इन कैंप व्हेन वी गैदर, तो उसका प्रैक्टिस कराते हैं, वो सॉन्ग आपको सिखाते हैं. वो ऐसा सॉन्ग है व्हेन वी कंडक्ट ऑफलाइन एक्टिविटीज. अभी 1.5 साल से वो नहीं हुआ है, तो दैट सॉन्ग इज संग व्हेन इन केस ऑफ एवरी एक्टिविटी. जो भी हम एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं तो वो सॉन्ग है, हम होंगे कामयाब हैं. वी आल्सो स्टूडेंट्स, एनएसएस volunteers also practice these songs, and we together जो when we sing, all the students when together sing, तो एक स्पिरिट आता है उनमें, एक बहुत अच्छा मिलके काम करने का. एंड दे वर्क टुगेदर. एनएसएस यही सिखाता है, हाउ टू वर्क टुगेदर, वर्क विद द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, एक्चुअली मैंने एक हमारे लास्ट ईयर की खुशबू एक वॉलंटियर थी, मतलब एनएसएस लीडर थी. शी कुडंट ज्वाइन. मैंने उसको बोला था शी इज बिजी, वो जॉब पे है तो ज्वाइन नहीं कर पाई. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज टुमारो आई एम सेंडिंग द फॉर्म. इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स है, यू कैन फिल दैट फॉर्म. यस, एनी क्वेश्चंस?
No. No, sir. Okay. Okay, we are ending this meeting then. Goodbye. Wait for the form tomorrow.